तो आज मैं कल वाली कॉल सुना रही हूँ आपको, जो कल मुझे कॉल आई थी। ये कॉल को ध्यान से सुनो। First of all, any kind of, there is no limit in the policy. Like room rent, Hello? up to 7 any kind of room. Like Yes, ma'am. Very good afternoon. Prerna this side. I'm giving you a call from HDFC Bank Assurance, ma'am. Hello? Yeah, ma'am. I'm giving you the call from HDFC Bank Assurance regarding the Ergo policy. Are you seriously calling me from HDFC Ergo insurance policy? No, ma'am. I'm not giving you a call from HDFC Ergo. Then I said I'm giving you the call from HDFC Bank Assurance. Somewhere you have purchased the policy, ma'am. Where the insurance gets fixed. I am giving you a call for the HDFC Ergo's insurance regarding the renewal purpose, ma'am. Call me. Let the HDFC Ergo call me. Why are you calling me? I am giving you a call because we have, as an advisor, we are giving you a call. There is some kind of advice for you, ma'am. What advice? There's an advice for you. As you are the customer, so there are some kind of clarifications regarding the policy. Where is the product which you? The product which you took, Mahir Suraksha, that has been discontinued. Now the company is going to provide you another product which is named as Optima Risto. Okay. So as you are already holding, as you are already holding the Optima Risto policy currently, right? You can get a discount. As I was? As you are already holding the Optima Risto policy, right? Yeah, and you are even going to pay the premium for the policy, correct? What is the premium? Yeah. Just a second, I'll let you know the premium. I'll tell you what will be the renewal amount. It's nearly 29,718 rupees, sir. Ma'am. 29,000? 29,718 rupees. For what? For the renewal, ma'am. For the HDFC Ergo's policy. Which policy number you are talking about? Yeah, this is the same policy number, ma'am. Just a moment, I'll rectify. It's 2952-2010-6443580-800. Hello. I am listening to you, ma'am. Hello, ma'am. I am listening to you. Yeah. Send me the email. Okay. I'm even sending you that. That's not the concern, but ma'am, I'm not giving you call just for the renewal purpose. Even there is a suggestion of portability also being offered to all of the customers, where you can even transfer the same policy with all the previous continuity benefits, ma'am. Send me in email regarding whatever you are telling me. Okay. But firstly, you have to listen to me, right? For what I have given you the call. I listen to you. Just send me the email. I will read it out. Okay, ma'am. Okay then. Thank you. Have a great day. You can provide me the available time of yours then? Is it possible? Ma'am, send me email. I'm busy. I'm in a meeting right now. Send me email. Okay, ma'am. देन तो स्कैम ये है कि कल मुझे दोपहर को 3-4 बजे एक मोबाइल से कॉल आता है। लड़की बोलती है, मैम मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, चलो फलाना हम लेते हैं HDFC। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो कहती मैम आपकी एक पॉलिसी है जो रिन्यूअल के लिए रहती है और आप इसकी रिन्यू कर दीजिए हमारे साथ। तो मैंने कहा आप क्यों कॉल कर रहे हो? सो बेसिकली आप एक बात समझ लो कि कभी भी अगर आपको बैंक से कॉल आ रहा होगा या बैंक वाले कॉल कर रहे होंगे तो वो कभी भी आपको मोबाइल से कॉल नहीं करेंगे। कोई भी फलाना बैंक होगा, लैंडलाइन से आएगा और बाकायदा उस पर लिखा होगा बैंक का नाम। अगर मोबाइल से आता समझ लो फ्रॉड है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो लड़की ने मुझे कॉल किया मोबाइल से, उसको कैसे पता कि मेरी अब कौन सी पॉलिसी पेंडिंग है रिन्यूअल के लिए? क्योंकि एक तो मैंने रिन्यू कर दी, वो तो उसने नहीं बताई। तो जो मेरी अभी पेंडिंग है, जिसका भी टाइम ड्यूरेशन रहता है, वही पॉलिसी के बारे में उस लड़की ने मुझे क्यों बोला? तो मेरे को सबसे पहले उस लड़की पे ये गुस्सा आया कि आप मुझे मोबाइल से क्यों कॉल कर रही हैं, आप मुझे लैंडलाइन से क्यों नहीं कॉल कर रही हैं, और अगर आपने मुझे नोटिफिकेशन दी नहीं है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल भेजिए, जो लड़की ने नहीं भेजा। फिर मैंने कहा टोल फ्री नंबर दो। जैसे ही मैंने टोल फ्री नंबर घुमाया, उसने फ़ोन
देखो जी, आपका जो डाटा होता है ना वो बैंक के साथ होता है, और अगर आपका ऐसा डाटा लीक हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो रहा है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंक के डिपार्टमेंट के साथ है, तो समझ लो बैंक अपने क्लाइंट्स की डाटा बेच रहा है फ्रॉड करने के लिए। फिर जब मैंने अपने बैंक में कॉल किया, मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसे ऐसे कॉल आई है और मैंने तो अपनी पॉलिसी अभी रिन्यू कर दी और अभी मेरी सिर्फ एक पॉलिसी पेंडिंग है जिसका भी टाइम नहीं है, तो मुझे बैंक वाले बोल रहे हैं कि मैम इग्नोर दैट कॉल, इट्स अ फ्रॉड कॉल। तो मेरा डाटा गया कैसे वहाँ? अगर आप प्राइवेट बैंक्स हमारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थर्ड पार्टी को देंगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपका नाम बताऊंगी और मैं ट्वीट करूंगी कि आप हमारा डाटा थर्ड पार्टी को दे रहे हैं फॉर द फ्रॉड सिस्टम। दैट वाज माय थर्ड। अगर किसी को यकीन ना आए तो ट्रू कॉलर स्कैम एक जो सेक्शन होता है वहाँ पे सब लोग अपनी स्कैम स्टोरीज डालते हैं। उससे एक दिन पहले ही मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ट्रू कॉलर पे कि अब इंश्योरेंस पॉलिसी का स्कैम कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या स्कैम होगा, वो मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी 4 पैराग्राफ की सेम कल। सो गाइज whoever इज़ वॉचिंग माई दिस स्टोरी, प्लीज़ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ बी अलर्ट। अगर आपको मोबाइल से कोई भी कॉल कर रहा है, डोंट टेक दैट सीरियस। आप सीधा बोलिए ईमेल सेंड करिए या बोलिए हम वेबसाइट पे जाके खुद ही अपनी पॉलिसी रिन्यू कर लेंगे। वी डोंट नीड योर ब्लडी शिट हेल्प। सबसे बड़ा कैच कल तो ये था जब मैंने लड़के से बोला कि अच्छा मैं बैंक में कॉल करके पूछती हूँ, तो उसने जो मुझे टोल फ्री नंबर दिए थे वो टोल फ्री नंबर मैं परसों ही कॉल कर करके थक गई थी और मुझे कोई कॉल नहीं आ रहा था। तो कल जब मुझे अपने बैंक से कॉल आया, मैंने उनसे नया टोल फ्री नंबर मांगा, तो मैंने जब वो नंबर डिफरेंस देखा मैं समझ गई शीज़। और मैं सबसे बोल रही हूँ प्लीज़ कीप एन अपडेट विथ योर बैंक्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट टोल फ्री नंबर्स, क्योंकि इन लोगों के बैंक के टोल फ्री नंबर हर साल चेंज होते हैं, क्योंकि हर साल न्यू एलोकेट होते हैं फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन। बिकॉज आई हैव वर्क विद एयरटेल, इनका एक भी नंबर 2 साल के लिए नहीं होता। एक और बात बता रही हूँ, बीइंग कि लड़की गलत थी, फ्रॉड थी, वो स्टिल मुझे अपने जहाँ से मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात करी थी, मैम आपको पता नहीं है आपकी ये पॉलिसी, आपको तो कुछ नहीं पता, आपका इतना अमाउंट है। और जो अमाउंट था वो मुझसे उसमें से 10,000 रुपये ज़्यादा अमाउंट करके बताई थी, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया था। देखो जी, फ्रॉड की, स्कैम की कोई भी एंड लाइन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। आपको अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल के रखने हैं, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना, आपने ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। बिल्कुल ले मैन की तरह सोच के अगर आप काम करोगे आप दुनिया जीत लो। और ये जो बैंक वाले होते हैं ना, कोटक महिंद्रा सबसे बड़ा फ्रॉड, HDFC सबसे बड़ा फ्रॉड। मेरा सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था HDFC बैंक के साथ, सेकंड फ्रॉड हुआ था मेरा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ये सारे जितने भी RBI से लोग एक सर्टिफिकेट लेके बैठे प्राइवेट बैंक्स, दे आर द स्कैमर्स इन मार्केट। एंड डोंट टॉक विथ एवरीवन अबाउट योर पॉलिसीज, एंड डोंट टॉक इन मेट्रो, इन बस, in market, in shops, with friends, with relatives. Keep your confidential things confidential with you for the rest of your life. They are your life secrets, man. Hi, good morning. तो अभी मैंने कुछ 5-10 स्टोरीज़ पोस्ट करी हैं न्यूज़ स्कैम के लिए, वो आप देख लीजिए। जेस्चर ऑफ द स्टोरीज़ बता देती हूँ कि मार्केट में नया स्कैम आया है। फ्रॉडर्स जो हैं आपको कॉल कर रहे हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, पॉलिसीज़ के लिए कि आपकी पॉलिसी रिन्यूअल होने वाली है, और अगर आप अभी टाइम पे पॉलिसी रिन्यू नहीं करेंगे हमारे साथ तो आपका GST डबल हो जाएगा या पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। वो ये बोलेंगे पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो आपने कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आपने उनकी किसी भी फाइल पे, PDF की फाइल पे क्लिक भी नहीं करना। हो सकता है वो APK फाइल हो, जो कि एक फ्रॉड फाइल होती है। आपने उनको बोलना है मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मैं वहाँ से चेक कर लूँगी, मैं खुद टोल फ्री नंबर पे बात कर लूँगी, आपने मुझे बता दिया, थैंक यू फॉर दैट। उन्हें ऐसे बोलना कि आपने हमें अवेयर करवा दिया, थैंक यू फॉर दैट, कि आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया। वैसे आपको खुद एक रिमाइंडर होना चाहिए, अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर डालो, अपने ईमेल में एक रिमाइंडर डालो, जो भी आपके ऐसे रिन्यूअल पॉलिसीज़ की जो कोई भी चीज़ें हों। प्लस डोंट हरी फरी विद देम। वो अगर आपको कोई लिंक भी देंगे तो अच्छा मैं अभी पे कर देता हूँ, अगर वो बोलेंगे मैडम अभी पे कर दो, फिर हम आपको कुछ कंसेशन दे देंगे, कोई कंसेशंस नहीं होता। दे विल ओवर चार्ज यू
एज पर द प्रीमियम प्लस दे विल डिनाई कि हमने आपसे कुछ नहीं करा। ये बैंक्स वाले आपका डाटा थर्ड पार्टी को दे रहे हैं या बैंक्स वाले ही कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अब काम धंधा नहीं रह गया मार्केट